तो शुरुआती दिनों में काफी चैलेंजेस होते हैं, लाइक यू आर जस्ट इन्वेंटिंग, यू आर जस्ट इंट्रोड्यूसिंग योर कंपनी और लॉन्चिंग योर कंपनी। सो जो कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही माइनस में था, इट वेंट अप टू 100% इन ए सिंगल डे. वेरी नेक्स्ट डे आई लेफ्ट माई जॉब. मतलब ये है ना, जो पैशनेट एंटरप्रेन्योर्स होता है ना, ये वही बोल सकते माइंड सेट कैसा है पहले जज करना, उसके बाद वो आपको चेंज करना है या बनाना है. अगर तो चेंज करना है देन इट्स अगेन अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. right? So manpower in manufacturing, I have seen maximum time that it's a biggest challenge. Today, Indian businesses are fighting a strange battle, not against competition, not against recession, but against waste. Machines are running, workers look busy, money is being spent, yet profits are shrinking. Why? Because businesses don't always need more investment, they need fewer losses. And today's guest is the man who sees waste in places where business owners see it's normal. Founder of Lean Tycoon Consulting Group, scaled from 1 to 80 plus employees, the expert transforming factories into profit engine. Let's meet Kamal Singla ji. Making profit isn't hard, stopping loss is. So let's meet our guest for today. Make them up in my head again. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक सोच में। हमारे साथ आज एक ऐसे व्यक्ति है जो कंसल्टिंग की दुनिया के मास्टर है, और वो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। तो आइए मिलते हैं हम कमल सिंगला जी से। नमस्कार कमल सिंगला जी, एंड वेलकम टू एक सोच, वन आइडिया दैट चेंज्ड योर लाइफ. And thank you so much for accepting our invitation, because I believe that you are flying today again to Dubai. Yes. Still you made some time for us and you are here today. So thank you so much for being there. Thank you. So before we even start, like, this entire talk show is about Ek Soch, one idea that changed your life. So my viewers, including me, I really want to know, how did you started your journey? My journey was I belong to a middle class family, and we are basically from Punjab, a city known Barnala. And I started, I'll talk about professional life. So after college, we got selected in one of the biggest groups of this country, that is Trident Group of Industries. Oh wow. Yeah, so Trident has a different kind of hiring people. Process of hiring people is totally different in Trident. तो वो लोग क्या करते हैं कि they have a proper based Takshashila named recruitment cell is there. Okay. So they hire a new talent every year. So they conduct a very huge exam across the country, and they recruit people like that, very young talent. So in 2012, I was also one part of that, that recruitment drive, and I got selected in 367 people out of, I guess 25,000, 30,000 Oh. at that time. So that was the starting point, and after that, we are carrying forward with the traditional values and the emotional values our parents have given to us. Superb. So when did you get that spark कि नहीं यार, अब मुझे खुद का कुछ चालू करना है? वो तो शुरू से ही था. मतलब व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो मतलब मैं देखता था कि आज कॉलेज में ये कंपनी आई है रिक्रूट करने के लिए, आज हम सब लोगों को इकट्ठे होके उनके एग्जाम्स देने हैं, ये करना है. तो हाउ टू रीच एट दैट स्टेज कि जिसमें यू आर कमिंग एंड यू आर गोइंग फॉर recruiting others. So what is the mantra, or what is the process of doing it? So वो शुरू से एक माइंड में था, लेकिन करना कैसे है वो कुछ अता पता नहीं था उसका बिल्कुल. शुरुआती दिनों में, like, during our generation, like our time, we are called as millennial generation. So हमारे टाइम पे हमको पता ही नहीं था हमको करना क्या है. सबसे बड़ा चैलेंज तो वो था, और उसके बाद अगर पता है तो इसको करे कैसे, that's again a big challenge.
सो एक ये भी था, एंड सेकंड वी वी वर इनटू दैट पर्टिकुलर थिंग जिसमें बड़े लोग ये बोलते थे कि यार नौकरी लग जाएगी तो सब अच्छा हो जाए, अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये यही एक माइंडसेट था। और तब दो ही ट्रेड्स फेमस होती थी, है ना। माय माय सिस्टर शी इज अ डॉक्टर। तो हम दो भाई हैं, दोनों इंजीनियर्स हैं, तो दो ही चीजें चलती थी, आइदर इंजीनियर और या फिर आप डॉक्टर बनो, है ना। तो दोनों ही घर में बन गए, इंजीनियर्स भी हैं डॉक्टर्स भी हैं। ठीक है। तो वो एक शुरू से ही वो सोच बनी हुई थी, माइंडसेट था कि यार नौकरी करनी है ना, जॉब करनी है। और करी भी नौकरी करी, हमने सबने जॉब की है, तीनों भाई बहनों ने हमने जॉब की है। एंड आफ्टर दैट लेकिन एक माइंड में वो एंटरप्रेन्योरशिप वाला एक कीड़ा जो हम लोग बोलते हैं ना, वो था जो तंग कर रहा था। सो 2019 आई स्टार्टेड माई ओन वेंचर आफ्टर लीविंग good big company, one of the biggest orthopedic manufacturers in this country. So I left the job of deputy manager over there, and then I started my own. Wow. And you also selected the same niche, right? Manufacturing is your niche. Yes. The consulting manufacturing units. I want to know, I've read the name of your company. It's Lean Consulting. So how did that idea came? It's Lean Tycoon. So frankly speaking, this name ये मेरी wife का दिया हुआ नाम है. So we both were sitting in a room, like 10 by 10 के कमरे में बैठे हुए थे. We were thinking कि यार कंपनी शुरू करनी है, क्या नाम होना चाहिए. सो आई सेड कि भाई तुम बताओ, नामकरण करो आप, है ना. सो सडनली शी गॉट विद दिस नेम कि इससे स्टार्ट करते हैं. एंड देन क्या होता था, मतलब मुझे जो लगता था कि यार अगर जो भी नाम आप सिलेक्ट कर रहे हो, सबसे पहले उसका डोमेन एक्वायर कर लो आप, वेबसाइट डोमेन, है ना. क्योंकि आज आप ठीक है, आज आप छोटे कमरे में बैठे हो, तो कल को ग्रो तो होना ही है, करना है, तो वो उसके लिए फिर कल को वो चैलेंज ना बन जाए. तो हमने जब डोमेन चेक किया तो इट वाज अवेलेबल, एवरीथिंग वाज अवेलेबल, .com, .in, .org. हमने तब सारे ले that was our first investment into the company, that buying of that domain. So that was the first investment. So how it started, the name Lean Tycoon. So that is the story behind it. Superb. So शुरुआती दिनों में काफी challenges होते हैं, like it has been, I mean, you are just inventing, you are just introducing your company, you're launching your company. जाहिर सी बात है कि काफी समय आपने दिया रहेगा कि किस तरीके से मैं अपना फर्स्ट कस्टमर को अक्वायर करूं. So would you like to throw some insights on that? Yes, जब मैं जॉब में था, लाइक वर्किंग, एंड माइंड में वो डेली बेसिस पे चल रहा था कि यार कैसे निकलूं, कैसे स्टार्ट करूं. अगर मैंने छोड़ दिया, उसके बाद स्टार्ट किया और काम नहीं किया, वर्कआउट नहीं किया इस चीज़ का, तो वापस आना मुश्किल हो जाएगा. घर पे क्या बोलेंगे, फैमिली प्रेशर. हम जब भी आपने मिलेनियल्स बोला, तो वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फॉर द फैमिली, वो आपका एक अकाउंटेबिलिटी था, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था. ठीक है. तो वो आपको बताना था, नहीं दिखाना था कि जी यू आर सिक्योर, राइट. सो बाय दैट टाइम आई वाज मैरिड ऑल्सो. तो जब मैं जॉब कर रहा था, तो अभी 4-5 महीने हुए थे मैरिज को, तो उसी फेज में आई वॉज इन टू दैट कि मुझे करना है. इट वॉज चैलेंजिंग विद इन माई सेल्फ, एंड उसको बाहर कैसे लेके आना है. सो वट आई डिड, पापा का एक्टिवा उठा के इंडस्ट्रियल एरियाज में चला गया, बैग उठाया. मेरे को नहीं पता था मार्केटिंग कैसे करूं, स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो. आई वॉज टोटली अनअवेयर, किससे बात करूं, किससे नहीं करूं, है ना. बिकॉज जॉब में आपके कॉन्टेक्ट्स विद इन द कंपनी ही होते हैं, आउटसाइड द कंपनीज नहीं होते हैं, राइट. और जिस डिपार्टमेंट में मैं 15 साल से रहा हूं, उस डिपार्टमेंट में तो बिल्कुल ही आपको इंटरनल ही शॉप फ्लोर पे रहना पड़ता है. सो आई वॉज टोटली अनअवेयर कि जाना कैसे है, कैसे शुरू करूं. तो वो एक्टिवा उठाया एंड वेंट इनटू द इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ द सिटी, एंड आई स्टार्टेड नॉकिंग द डोर्स. Wow. कि सर, आई एम दिस ब्ला ब्ला, my name is this, I have this much experience, I can help you. So we can sit on that. And on the very first day, I got 2 clients. Wow. The very first day, I still remember. And the fees was only 25,000 rupees per month
for one client, and the second was 35,000 Wow. in the single day. So जो confidence बिल्कुल ही माइनस में था, it went up to 100% in a single day. Very next day I left my job. मैं कर सकता हूँ, वो मतलब एक ज़ील आ गया कि यार मैं कर सकता हूँ, मतलब मेरा जो मेथड था यही करेक्ट मेथड है, और मेथड्स का नहीं पता था, लेकिन जो किया जिससे रिजल्ट मिल गया तो वही राइट मेथड बन गया. सो आई स्टार्टेड देयर फ्रॉम देयर, एंड वहाँ पे रिजल्ट्स डिलीवर किए. द इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट वाज फॉर ओनली 3 months, लेकिन वो 2.25 साल चला. Wow. सो पहला कॉन्ट्रैक्ट 2.25 साल चला. That was your first break and you got it very first. On a very Lucky you, I mean. और हमारा जो कंसल्टिंग का जो दुनिया है, लाइक दे बिलीव इन क्रिएटिंग दैट ऑफर. पहले ऑफर बनाओ, पैकेजिंग बनाओ, क्या पिच करोगे वो बनाओ. एंड हियर कम्स कमल सिंगला जी, जहाँ पे डायरेक्टली आप चले गए. आई एम श्योर दैट यू माइट इवन हैव नॉट थॉट ऑफ लाइक कि मैं अभी क्या पिच करूंगा, कैसे नहीं, pitch वो करूंगा. मौके पे बैठ के हुआ सारा. सो आई बिलोंग टू अ बनिया फैमिली, तो वो दिमाग थोड़ा सा पैसे में ज्यादा घुसा रहता है ना. करेक्ट करेक्ट. तो वो चीज थी कि आपको चाहिए क्या, व्हाट डू यू वांट, आपको कल्चर डेवलप करना है या आपको लॉसेस को कम करना है. आई कैन हेल्प यू इन बोथ. कल्चर की डिमांड करोगे तो मैं आपको पैसा नहीं दे पाऊंगा जल्दी से, इट विल टेक टाइम. लेकिन अगर आप टेंजिबल चीजों पे फोकस करोगे तो आई एश्योर यू विद इन 3 months, मेरे को अब 3 महीने का टाइम दे दो. एंड एक और मैंने वहां पे कंडीशन रखी जो कि ना मैं सोच के गया था, ना मेरे मतलब कुछ प्लान में था, ना ही मेरी स्क्रिप्ट का पार्ट था. जब भी बंदा कहीं जाता है तो एक स्क्रिप्ट तो उसके माइंड में होती है कि मुझे क्या बोलना है ना, चाहे वो रिटर्न में ना हो. तो मेरे माइंड में ये पॉइंट नहीं था, तो मैंने उनको बोला यू प्लीज डोंट पे मी अ सिंगल पेनी इन 3 months अगर मतलब मैंने परफॉर्म नहीं किया. So that's your confidence. Yeah. वो कैसे निकली उस टाइम पे, वो आज की हमारी पिच की ना सबसे बड़ी एक वो बन चुकी है कि यार आप पैसे मत देना, इससे बड़ा तो क्या ही बोलेगा इंसान बिजनेस में. I've seen this. मतलब ये है ना, जो पैशनेट एंटरप्रेन्योर्स होता है ना, ये वही बोल सकता है. हाँ, So wherever I go, I do the same thing. Like if you don't find a result, don't pay me anything. It's from me. So and that works really well. Yes. So it's very important that whatever you do it with full passion, because आपको पता नहीं है कल क्या होने वाला है. And that's how I believe that आपका जो experience रहा है जहाँ पे आपने काम किया है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, that might have worked a lot. यस, वही मेजर है. मैं लाइफ में आपके 3 गुरु मैं मानता हूँ. मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 3 गुरु होते हैं. पहले गुरु आपके पेरेंट्स हो गए, ठीक है, जिन्होंने आपको संस्कार दिए कि दुनिया में कैसे जीना है ना. सेकंड आपके होते हैं टीचर्स, जो आपको ज्ञान देते हैं, है ना. थर्ड होते हैं आपके बॉसेस, जो आपको प्रोफेशनल लाइफ जीना सिखाते हैं. Yeah. Right. सो मेरी लाइफ में ये तीनों बहुत अच्छे रहे हैं. पेरेंट्स तो खैर सबके अच्छे होते हैं ना, कोई भी नहीं बोलेगा कि यार मेरे पेरेंट्स अच्छे नहीं हैं. सो पेरेंट्स तो सबके अच्छे होते हैं. टीचर्स भी वी कैन से कि अच्छे ही होते हैं, कोई भी ऐसा नहीं होगा कि यार मतलब मेरे तो टीचर ही नहीं अच्छे थे. थर्ड थिंग इज ऑलवेज अ टॉपिक ऑफ कंसर्न कि मुझे बॉस अच्छा नहीं मिला, बट मेरे को जो अपने सुपीरियर्स मिले, that was they were one of the best in the industry. So his name is Surya Narayan Bhatt and he is in Dubai. Okay. So he recruited me out of those 300 people, I still remember. And उनका डिपार्टमेंट लीन का था. Okay. सो थ्रू आउट माई एंटायर प्रोफेशनल करियर मैं इसी डिपार्टमेंट में रहा हूँ. तो जो उनका तरीका था ट्रेन करने का या चीज़ों को समझाने का, दैट वाज टोटली डिफरेंट. लाइक वो बोलते थे कि यार तुम एक यू आर अ ब्लैंक पेपर, आई कैन राइट एनीथिंग ऑन यू, राइट, और जो मैं लिख दूंगा वो छप जाएगा. Yeah. सो दैट्स अ ट्रू थिंग. True. सो दैट इज द पार्ट ऑफ जर्नी. So very rightly said. और जर्नी में आपको एक इंसान ऐसे मिलता है जो आपका हाथ पकड़ के चलता है, राइट. एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट एक बंदा ऐसा मिले जो हमको आगे लेकर चले और हम उनको
लाइक काइंड ऑफ एन आइडल माने। एंड मैंने हमेशा से एंटरप्रेन्योर्स में ये एक चीज देखी है कि वो बुराई में भी अच्छा ही देख लेता है, कि मैं यहाँ से भी सीख ही रहा हूँ, राइट? किसी ने मेरे साथ अच्छा किया बुरा किया, मैं यहीं से यहाँ से भी सीख ही रहा हूँ और यहाँ से मैं और भी आगे निकल सकता हूँ, right? So coming back to manufacturing, right? Manufacturing itself is such a traditionally run business, right? So उनकी जो mindset होती है वो बहुत fixed रहती है और उनको हिलाना बहुत easy नहीं रहता है, right? उनको समझाना, consulting itself is a service based industry, right? So उनको समझाना I'm sure that बहुत ज़्यादा difficult होता रहेगा because you might have to work on their mindset, right? So I really fail to understand that how is it that you made it in your first attempt itself? इसमें निराली जी 2-3 फैक्टर्स हैं जो मतलब मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग या मेरी टीम के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कोलैबोरेटिव है। सबसे पहले तो उनका माइंडसेट जो चैलेंज में आ रहा है दैट इज ऑन द सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट तो है कि उनको ढूंढना। Agreed. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लोगों को ढूंढना और उनको बताना कि भाई हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, अवेल अस, वो सबसे पहले चैलेंज है। उसके बाद जब आप फेस टू फेस बैठे हो देन कम्स द पार्ट कि उसके माइंडसेट कैसा है, उसको चेंज करना है या बनाना है। बिकॉज इन इंडिया हर गली में आपको कंसल्टेंट मिल जाएगा, I agree. ठीक है, whether it is digital marketing, whether it is lean consulting, whether it is any kind of consulting, right? आपको हर गली में कंसल्टेंट्स मिल जाएंगे। तो कुछ मैन्युफैक्चरर्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी इसका टेस्ट कर चुके हैं एंड दे हैव एंडेड अप इन अ वेरी बैड सिचुएशन। तो जो अच्छे कंसल्टेंट्स हैं उनका भी पत्ता कट गया बेचारों का। सो दैट्स अ वेरी ट्रू फैक्ट अबाउट दिस इंडस्ट्री, राइट? तो माइंडसेट कैसा है पहले जज करना, उसके बाद वो आपको चेंज करना है या बनाना है। अगर तो चेंज करना है देन इट्स अगेन अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। अगर बनाना है इट्स स्टिल अ इजी टास्क, क्योंकि वो कोरा कागज है, जैसे मैंने आपको पहले बोला है ना। आपके लिए आप कैसे उसको समझाते हो, अपने आप को कैसे सेल कर रहे हो, बिकॉज आपके पास कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है। आप अपने दिमाग को बेच रहे हो, आप अपनी नॉलेज को बेच रहे हो ना। वो नॉलेज को आप किसी पैकेट में डाल के दिखा नहीं सकते कि दिस इज आई एम गोइंग टू सेल, राइट? सो वो थॉट्स के साथ वो क्या सोच, वो चाह क्या रहा है। आज की डेट में हमारे देश में हर मैन्युफैक्चरर दुखी है। आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के ओनर के साथ बैठ जाओ, वो बोलेगा यार मेरी तो मैन पावर इतनी बेकार है, मैन पावर ही मेरे को मिल नहीं रही। सबसे पहले बोले मेरे पास मैन पावर नहीं है। दूसरा बोलेगा जो है वो अच्छा नहीं है। तीसरा बोलेगा जो अच्छा है वो चला गया। ये 3 फैक्टर्स पे वो मतलब अपने ही उसमें रहते हैं, क्योंकि काफी हद तक सही भी है, सच भी है। उसको मैनेज करने की टेक्निक्स अलग है। तो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, इनका माइंडसेट चेंज करना वाज द सेकेंडरी पार्ट। प्राइमरी पार्ट वाज टू सर्च देम कि कौन है। जैसे मैंने आपको इंडस्ट्रियल एरिया वाली एग्जांपल दी। सो आई वाज लकी कि उस दिन वो 3rd जनरेशन वाले बंदे बैठे हुए थे। अच्छा, ये भी एक आगे फर्दर इसका प्रोसेस है। If you are meeting with the 3rd generation of that particular company or an organization, whether it is manufacturing or whether it is a trader, हाई लेवल के ट्रेडर्स में भी हम लोग काम करते हैं, बट ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट मैन्युफैक्चरिंग। तो उसके साथ कनेक्ट करना ना आसान है, बिकॉज वो खुद भी बहुत सारी चीजें चेंज करना चाहता है। उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी है जो कि वो चैनलाइज नहीं कर पाता, बिकॉज उसके ऊपर उसकी पास्ट जनरेशंस बैठी हुई हैं। तो वो उसकी खुद की अप्रूवल्स का एक प्रोसेस है, राइट? तो एक वो चैलेंज है। इन सारे चैलेंजेस को पार करने के लिए आपके पास 2 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि आपका या तो ट्रैक प्रूवन हो, कि जाके आप ट्रैक दिखा दो कि जी ये लो, ये ट्रैक है मेरा, ये रेफरेंसेस हैं, जस्ट कॉल देम एंड आस्क। एक तो वहां पे यू कैन कन्वर्ट योर केस। सेकेंड इज यू गिव देम समथिंग tangibly, which can convince them कि हाँ यार ये हमें करना चाहिए, चलो करके देखते हैं। जैसे आपको परफॉर्म करने का मौका मिल गया उसको छोड़ो मत। तो ये 2 रास्ते हमने मतलब आज तक देखे हैं कि पहला रास्ता भी धीरे धीरे बनेगा। रेफरेंसेस फर्स्ट डे पे तो होंगे नहीं,
राइट। तो सेकंड रास्ता जो आपको उनको टेंजिबल कुछ दिखाने का है, गेन्स दिखाने का है, दैट इज द बेस्ट मेथड। सो माइंडसेट उसी से, वो डिस्कशन से ही चेंज होता है। True. You rightly said that third generation जो manufacturing unit में आता है, his mindset is quite like he is very open minded कि भाई मुझे कुछ नया try करना है. That is where they start doing things what they want to. Right? Again you said that permission, There is a process. there is a process. जो अपनी फैमिली की प्रोसेस होती है वो फॉलो करनी पड़ती है उनको, राइट? बट हैविंग सेड दैट, वी वर टॉकिंग अबाउट मैन पावर, राइट? सो मैन पावर इन मैन्युफैक्चरिंग, आई हैव सीन मैक्सिमम टाइम दैट इट्स अ बिगेस्ट चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज। जो टॉप लेवल पे बंदा बैठा है से लेके जो लो लेवल पे बैठा है, ये सभी का एक इश्यूज होते ही है। और जैसे मैंने बोला, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जहाँ पे सब कुछ सिस्टम के साथ नहीं चलता, राइट? फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम ओनर इज द फेस, राइट? ओनर सारी चीजें कर रहा है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, राइट? जैसे आपने बोला कि सेल्स अगर रहेगी तो वो रहती नहीं है, चली जाती है। इंजीनियर्स होंगे तो वो इंजीनियर्स भी यहाँ पे सीख के निकल जाते हैं, राइट? सो देयर इज अ लॉट ऑफ चैलेंज। हाउ कैन वी फिक्स दिस चैलेंज? फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव राइटली सेड दैट कि ये चैलेंजेस हैं, और ये चैलेंजेस नहीं है, फैक्ट्स हैं। इसका जो डीप एनालिसिस है कि सबसे पहले तो ऐसा क्यों है, जो हमने एक्सपीरियंस किया है इंडस्ट्री के साथ, दैट इज द ह्यूज लेवल ऑफ हियरार्कीज आर देयर। ओनर है, ओनर के नीचे सीईओ है, सीईओ के नीचे एक वीपी है, वीपी के नीचे जनरल मैनेजर है, मैनेजर जनरल मैनेजर के नीचे मैनेजर है, फिर सुपरवाइजर है, फिर उसके नीचे ऑपरेटर्स है। इतना लेयर्ड स्ट्रक्चर है कि जो नीचे की कम्युनिकेशन है वो ऊपर नहीं पहुंचती, जो ऊपर की कम्युनिकेशन है नीचे नहीं पहुंचती। उस केस में नुकसान किसका है? दो बंदों का। लेट मी टेल यू फ्रैंकली, पहला है ओनर, दूसरा है ऑपरेटर, नीचे वाला। बोथ आर कनेक्टेड। मैन पावर, मैंने अब आपको तीन चीजें बोली। मेरे पास अच्छी मैन पावर नहीं है, ठीक है, जो अच्छे हैं वो चले गए, और मैं रिक्रूट भी नहीं कर पा रहा, ठीक है। ये आपको यूजुअली आपको सुनने को ये मिलेगा कि मतलब कोई मैन्युफैक्चरर होगा या कोई भी कंपनी वाला होगा। सेकंड, जो आपने बोला कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, आप चाहे ऑर्गेनाइज ले लो, सेम है। हाँ, सेम पंगे उनके भी, सेम प्रॉब्लम्स हैं। इट इज नॉट कि हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि आप गलत और ज्यादा गलत में किसको चूज करते हो। फर्क वो हो सकता है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें ये प्रॉब्लम्स कम हो, और जो अनऑर्गेनाइज है उसमें ये ज्यादा हो, लेकिन प्रॉब्लम सेम है। उससे प्रॉब्लम स्टेटमेंट चेंज नहीं हो जाता, उसकी क्वांटिटी से प्रॉब्लम स्टेटमेंट विल बी सेम। सो सॉल्यूशन टू दैट इज नॉट द राइट मैन पावर or the quantity of manpower. It is the systems you have to put in place, जिससे कोई भी आदमी अगर आपकी कंपनी में जॉब करने आए, किसी भी लेवल पे आए, तो वो सिस्टम का हिस्सा बने। तभी आप उस चीज को सस्टेन कर पाओगे। Being a small company, Lean Tycoon is not that much big company. Being a small company, we have 80 plus employees. Out of that, 50% are older than 4.5 years. Okay. मतलब वो तब जुड़े थे जब मैं अकेला था, और आज भी हैं। True. राइट? तो आपको सिस्टम्स के साथ काम करना है, सिस्टम्स को इन प्लेस लेके आना है। वो सिस्टम कोई एक मंत्र नहीं है कि जो पंडित जी ने आपको दे दिया और डेली उसका जाप करोगे तो सारी चीजें हो जाएगी। नहीं, आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग सिस्टम अलग बनेगा। ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। सॉफ्टवेयर तो आपके पास ऑलरेडी है बहुत। ये सॉफ्टवेयर नहीं है, ये आपकी कंपनी के माइंडसेट के अकॉर्डिंग सिस्टम बनेगा। वो अलग अलग कस्टमाइज करना पड़ेगा, तब जाके चलेगा।
आई एग्री. अगर मैं आपको बोलूं जी हमारे पास एक मॉडल है, इस मॉडल के अंदर अगर आप ये 10 चीजें सेट कर दो तो आपकी मैन पावर ठीक हो जाएगी. मैन पावर ठीक, आप एट्रिशन कैसे कंट्रोल करोगे? आप एब्सेंटिज्म कैसे कंट्रोल करोगे? नहीं कर पाओगे. सही है. आपको एब्सेंटिज्म के रूट कॉज तक जाना पड़ेगा कि क्या रूट कॉज है, बंदा छुट्टी क्यों मार रहा है. करेक्ट. जब बंदा छोड़ के चला गया, एचआर उसका इंटरव्यू लेता है कि भाई तुम क्यों जा रहे हो, उसके पास एक अच्छा सबसे तगड़ा बहाना होता है, सैलरी प्रॉब्लम. सर मेरी तो सैलरी अच्छी नहीं है, इस वजह से जा रहा हूं. इजी एस्केप है ना. इजी. लेकिन जब हम लोग इस प्रोजेक्ट को लेके, मैन पावर को लेके और डेप्थ में गए, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में गए, तो हमने ये चीज पाई कि भाई हर डिपार्टमेंट में एट्रिशन नहीं है. अब आपकी मैन्युफैक्चरिंग में एक डिपार्टमेंट तो है नहीं, 36 डिपार्टमेंट है. एक डिपार्टमेंट में, 2 डिपार्टमेंट में एट्रिशन है, तो इसका मतलब उस डिपार्टमेंट को पकड़ो ना, करेक्ट. जो कि आपकी पूरी इस इमेज को हिला रहा है. करेक्ट. सो वहां पे एक एनालिसिस गैप है जो कि कंपनीज नहीं करती कि किस डिपार्टमेंट में ज्यादा प्रॉब्लम है. हो सकता है कि वहां का जो सुपरवाइजर है, जो मैनेजर है, वो मैन पावर को टिकने ना देता हो. ये रियलिटी है. आई एग्री टू दिस. ये रियलिटी है, हमने देखा है. या. क्योंकि उसकी मोनोपोली है, या. चाहता ही नहीं कोई अच्छा मतलब रहे. वहां पे आए. तो 90% केसेस में वी हैव सीन निराली जी की मैन पावर के प्रोजेक्ट में या मैन पावर के टॉपिक पे वो सारी जगह पे नहीं होता, वो 2-4 जगह होती हैं, 2-4 डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम होती है. उसको सेट करने की जरूरत है, पूरी कंपनी को छेड़ने की जरूरत नहीं. तो फिर आप 30 साल से टिके कैसे रहते हैं मार्केट में? करेक्ट. करेक्ट. अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती तो फिर आप 30-40 साल से टिके नहीं ना रहते. करेक्ट. अगर बिजनेस धंधा कर रहे हो तो इसका मतलब आपके पास तो बंदे हैं, लेकिन आपके पास इंफॉर्मेशन ऐसी ट्रांसफर होती है नीचे से जिससे सबकी नौकरी बची रहे. दैट इज द थिंग. राइट. सो जैसे आपने बोला कि जो टॉप लेवल पे जो बंदा बैठा है, शायद वो इन्फॉर्मेशन ऐसी पहुंचा देता है कि भाई इससे काम अच्छा नहीं हो रहा है, जबकि वो बंदा शायद अच्छा हो कंपनी के लिए. राइट. सो मे बी बिकॉज ऑफ फियर ऑफ लूजिंग द पोजिशन. The authority, the position, absolutely correct. You're right. True that. So now again I really want to know that यहाँ पे जैसे हम सिस्टम्स की बात कर रहे थे, राइट, कि हायरार्की भी बहुत बड़ी रहती है, लेकिन वो हिसाब से उनकी सिस्टम सेट नहीं होती है, राइट. सो व्हेन यू अप्रोच देम, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू आस्क देम टू डू इट About सेटिंग अप अ गुड सिस्टम? first of all, we always ask them कि आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम का एनालिसिस करते हैं. आपकी ब्लड रिपोर्ट निकालता है कि हीमोग्लोबिन कम है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं, क्या है, आपका थायराइड बढ़ा हुआ है. पहले तो एग्जिस्टिंग देखें ना, देन वी विल बी एबल टू टेल देम कि सर ये सिस्टम यहाँ पे ऐसे गलत है. एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ. लेट्स से आपको उस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में किसी का इनवॉइस क्लियर करना है. अब इनवॉइस क्लियर करने का एक प्रोसेस होगा, फीलिंग नहीं होनी चाहिए. लेकिन आपने देखा होगा कि इनवॉइस क्लियर करने की इस देश में फीलिंग बेस्ड सिस्टम है. अगर तो आपकी अकाउंट्स डिपार्टमेंट के साथ डायरेक्ट थोड़ी बहुत है तो आपका इनवॉइस जल्दी क्लियर हो जाएगा. हाँ, करेक्ट. अगर आपकी इनवॉइसिंग डिपार्टमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के साथ डायरेक्ट नहीं है तो वो अपना प्रोसेस टाइम लेगा, विच इज 45 डेज, राइट. तो वो एक सिस्टम एरर है. बड़ी कंपनीज में आपने देखा होगा कि दे हैव द 3 days साइकिल ऑफ द पेमेंट्स, 1, 15, 30 और 1 अगेन, राइट. सो एक साइकिल है, मतलब एक प्रोसेस है, एक एसओपी है. क्या वो आपकी कंपनी में है? तभी हम लोग एज इज और फ्यूचर डिसाइड कर पाएंगे कि हमें क्या प्रोसेस चेंज करना है. सो इट हैपेंस एंड वी हैव सीन दैट, वी हैव एक्सपीरियंस्ड इट कि जिसके साथ अकाउंट्स डिपार्टमेंट में थोड़ी सी लाइजनिंग है, लाइजनिंग वर्ड इज आई गेस करेक्ट वर्ड, लाइजनिंग है, तो उसके जो इनवॉइसेस हैं वो जल्दी क्लियर हो जाएंगे. और जिसके साथ लाइजनिंग नहीं है या नया वेंडर है, उसके इनवॉइसेस अपना टाइम लेके क्लियर होंगे, विच शुड नॉट बी द केस एज पर द सिस्टम. अब जिसके इनवॉइसेस टाइम पे नहीं क्लियर हुए उसके लिए तो वो अकाउंट्स वाला बन गया ना आपका बैड मैन पावर. जिसके हो गए उसके लिए बन गया वो राम राज्य. ट्रू. सो वो चीज है. सो यू टॉकिंग अबाउट कि अगर आपकी फीलिंग अच्छी है सामने वाले के साथ, देन योर इनवॉइस गेट्स क्लियर. लाइजनिंग अच्छी है, लाइजनिंग अच्छी है तो इट गेट्स क्लियर. बट डू यू रियली थिंक
that to clear your invoices also, there are multiple things that we have to do. See, if we are comparing the licensing with the friendship or something like that, then obviously there is a different process. But if we are talking of the SOPs of any kind of process, then it's a different thing, right? हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि एक इनवॉइस को क्लियर करने का प्रोसेस क्या होना चाहिए, एक्चुअल में कंपनी क्या सोचे. कल को मान लो कि आपका अकाउंट्स वाला है नहीं, या आपकी एट्रिशन हो गई, किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकती है, तो वो इनवॉइस कौन क्लियर करेगा? तो वो प्रोसेस होना चाहिए जो उसको क्लियर करेगा. और वो प्रोसेस इतना ही सक्षम होना चाहिए कि कल को इफ योर एम्प्लॉय इज ऑन लीव और ही इज नॉट देयर इन द कंपनी और अ न्यू एम्प्लॉय इज रिक्रूटेड, तो वो सेल्फ ड्रिवन होना चाहिए कि दिस इज द प्रोसेस, ये 4 बटन तुझे दबाने हैं, 5 बटन तुझे दबाने हैं, और इस तरीके से प्रोसेस होगा. फिर उसमें वो लाइजनिंग काम नहीं करती थी. अगर प्रोसेस है तो सबके लिए सेम है. सेम है, राइट. अगर चेक 15 तारीख को साइन होगा तो 15 को ही साइन होगा. आई हैव सीन पीपल बीच में जाएंगे, सर ये उनका क्लियर करना है, ये जरा थोड़ा सा साइन कर दो, होता है. यू माइट हैव आल्सो सीन दैट. Yes, yes, 100%. तो वो मतलब इट इज आउट ऑफ द प्रोसेस. नो, Yeah, it is out of. अर्जेंसी समझ में आती है, लेकिन ये फ्रीक्वेंट केसेस है. बट यहाँ पे इमोशनली भी बहुत ज्यादा. इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में. अब एक और एग्जांपल लेते हैं प्रोसेसेस की. हम लोग बात करते हैं लॉसेस की, कन्वर्जन कॉस्ट की, प्रॉफिट्स की एंड ऑल, है ना. तो सबसे बड़ी चीज सामने आती है कि सबसे बड़ा किलिंग लॉस क्या हो सकता है या कैसे हो सकता है. तो वो लोग समझते हैं कि यार ये रिजेक्शन कंपनी में होगा, कि कौन सा माल बना और वो रिजेक्ट हो गया. नहीं, एज पर अस रिजेक्शन इज नॉट द बिगेस्ट लॉस, रीवर्क इज. रिजेक्शन फिर भी आप कैप्चर कर रहे हो, रीवर्क आप कैप्चर ही नहीं कर रहे, नहीं कर रहे हैं. राइट. तो वही बात आ गई प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने की. जो स्टार्टिंग में जब वो पूछेगा कि भाई आप क्या करोगे, सर हम आपके पहले एज एज प्रोसेसेस देखेंगे. आज तक निराली जी वी हैव वर्कड विद 100+ कंपनीज. हमने नहीं देखा कि जिसमें कोई भी कंपनी हो जो रीवर्क को कैलकुलेट कर रही हो. So that's a biggest gap. प्रोसेस को चेंज कर दिया आपने, है ना. और जब वो ओनर्स देखेंगे कि यार बात तो बिल्कुल सही है कि मैं एक चीज को मैंने बनाया, पहली बार मैं सही नहीं बनाया, उसके बाद दोबारा उसको ठीक किया, वो ठीक होके मेरे पास तो रिपोर्ट ठीक किया है, लेकिन इसके ऊपर मैंने दोबारा पैसा लगाया ना ठीक करने के लिए, तो ये तो मैं कहीं देख ही नहीं रहा था. देख ही नहीं रहे. Yes. इट्स बिगेस्ट थिंग, राइट. तो वो चेंज ऑफ प्रोसेसिंग, दिस इज पार्ट ऑफ द पिचिंग. जब आप उनको पिच करते हो कि क्या क्या, और ये फैक्ट्स हैं, Facts है. Yes. इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, रियल फैक्ट्स हैं. हाँ, इसके नंबर्स डिफरेंट हो सकते हैं जब आप स्टडी में जाओगे, लेकिन फैक्ट्स तो फैक्ट्स रहेंगे. रीवर्क कोई नहीं कर रहा कैलकुलेट. So अब losses की बात कर रहे थे. So cash flow management is the biggest challenge, right? So how do you as a consultant work on that aspect? सी, कैश फ्लो पे डायरेक्ट काम करना इज नॉट गुड, आई वुड से. उसके जो फैक्टर्स हैं वो मल्टीपल हैं. हायर इन्वेंट्रीज, स्टक इन्वेंट्रीज. अब इन्वेंट्री भी 3 तरह की है. ये चीज बुक्स में भी नहीं है, ठीक है. आपको लीन की बुक्स में तो मिल जाएगी, लेकिन अगर आप फाइनेंस की किसी डिग्रीज में जाओगे तो वो स्टॉक को मानते ही नहीं, राइट. रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, देन योर WIPs, देन योर फिनिश गुड्स. अब WIP को कभी भी इन्वेंट्री माना नहीं जाता, क्योंकि वो तो वर्क इन प्रोसेस है. लेकिन भाई कितने दिन के लिए है, पैसा है, वर्किंग कैपिटल तो लगा मेरा उस पर. अब आपका डिलीवरीज क्यों फेल होती हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की, क्या कारण है उसको फेल होने का? ये इन्वेंट्रीज ही तो कारण है. प्रोसेस में लॉसेज इतने हैं, ठीक है, इन्वेंट्री पड़ी हुई है, वो क्या पैसा ही तो है. Yeah. जब पैसा मेरा मैं कहता हूँ रॉ मटेरियल को छोड़ देते हैं आज के लिए, कोई बात नहीं. आपने माल खरीद लिया, आपको सस्ता मिल रहा था, आपने खरीद लिया, आपके पास बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है. या हो सकता है कि कुछ इंडस्ट्रीज में यू हैव टू शो हाइपोथिकेशंस
इस वजह से आपने रॉ मटेरियल खरीद लिया, ठीक है, और कन्वर्ट करके अपने एफजी रख दिया और आपके पास एक्सक्यूज है कि मेरा तो माल कस्टमर ने उठाया नहीं, ये भी आपको छोड़ दिया। लेकिन जो डब्ल्यूआईपीज हैं वो भी तो पैसा है ना, Yeah. वो कैश फ्लो ही तो है, Correct. वो नेगेटिव में जाएगा ही जाएगा जब आपका डब्ल्यूआईपीज बढ़ेंगे तो। सो हम लोग जब भी इस चीज को टारगेट करते हैं, हम लोग काम करते हैं इन्वेंटरीज के ऊपर सबसे पहले, ठीक है। देन अब आपके जो कस्टमर्स हैं वो आपको टाइमली पे नहीं कर रहे, उसमें कंसल्टेंट्स कैन नॉट हेल्प, They cannot help. Yeah. राइट, वो आपकी सेल्स टीम का पार्ट है। हम लोग सेल्स टीम को कैसे एक्सेल करना है उस पर काम कर सकते हैं कि व्हाट आर द लूप होल्स। Yeah. एग्जाम्पल, लेट्स से देयर इज अ प्रोसेस ऑफ फॉलो अप, हमने अभी प्रोसेसेस की बात की, तो फॉलो अप का भी एक प्रोसेस होगा कि एक कस्टमर के पास क्रेडिट डेज हैं 35 डेज, ठीक है। 35 डेज में मेरा फॉलो अप साइकिल क्या है, एम आई गोइंग टू टेक अ फॉलो अप ऑन द 36 डे और आई विल स्टार्ट द फॉलो अप ऑन 33rd डे। सो यहाँ पे लीन कंसल्टेंट्स हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वो प्रोसेस ऑडिट करना शुरू कर देते हैं कि क्या 33rd डे पे उसको कॉल गई भी। Yeah. जब आपने कॉल ही नहीं करी क्योंकि 33rd डे पे तो संडे था एंड यू वर ऑन लीव, यू वर ऑन हॉलीडे, यू वर ऑन वीक ऑफ और समथिंग लाइक दैट है ना, बट यू आर नॉट अवेलेबल, तो जब उसको कॉल नहीं गई तो वो तो उसको तो एक दिन का वो मिल गया ना, ठीक है, एंड दैट विल इम्पैक्ट योर कैश फ्लो। सो देर आर मल्टीपल फैक्टर्स, द बिगेस्ट वी कंसिडर इज इन्वेंट्रीज। हमने बिगनिंग में बात करी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो की, तो यहीं पे तो आएगी, जितना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो हाई होगा उतना कैश फ्लो का पंगा कम होगा, उतनी प्रॉब्लम कम होगी। बट स्टिल आई फील दैट लोग जैसे मैन्युफैक्चरर्स की बात करें तो वो लोग इन्वेंट्री मतलब स्टॉक पूरा भरा हुआ रहता है अनटिल अनलेस कोई ऐसे क्लाइंट ना आ जाए जिनकी वजह से हमारा स्टॉक खत्म हो गया हो, राइट। सो काफी मुझे लगता है काफी पड़ा भी रहता है, बट स्टिल एज यू सेड डब्ल्यूआईपी वर्क इन प्रोग्रेस वाले भी और वो ज्यादा डेंजरस है, वो ज्यादा डेंजरस है। ज्यादा डेंजरस है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई आप अपनी इन्वेंट्री को अच्छे से मेंटेन करो और वो हिसाब से आपका जो टर्नओवर या कैश फ्लो है वो काफी सही तरीके से उसको मेंटेन किया जा सकता है। अब इसमें एक और फैक्टर आता है सीजनल। अगर आप फूड इंडस्ट्री में जाओगे दिवाली के टाइम पे उनको भरना ही पड़ेगा, या राइट। अब एक मान लो स्वीट मैन्युफैक्चरर है तो एट द टाइम ऑफ फेस्टिवल्स उसको अपनी एफजी इन्वेंट्रीज हाई रखनी पड़ेंगी ही पड़ेंगी। यस बट हैविंग सेड दैट, अगर उसकी वो इन्वेंट्रीज हाई होंगी भी तो उतना उसका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी हाई होगा उन दिनों में, सो ही विल बी एबल टू कॉप अप विद दैट। करेक्ट। तो वापस फिर से गाड़ी वहीं पे आ गई कि डब्ल्यूआईपीज क्या हैं। हाँ, पर आइडेंटिफाई करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कौन सा प्रोडक्ट कौन से टाइम पे चल रहा है। हाँ, सो वर्क ऑन दैट एस्पेक्ट कि भाई जो चीज ज्यादा चल रही है कौन से टाइम पे चल रही है। आई हैव सीन इट्स वेरी लाइक वेरी अनसिस्टमाइज्ड, और जो एनालिटिक्स भी होती है वो कई लेकिन इट्स क्वाइट शैटर्ड। ये लोग आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते यार कौन सी चीज कौन से टाइम पे चल रही है। बस माल बनाया जा रहा है, यहाँ पे पड़ा है माल, बट पता नहीं है क्या कौन से टाइम पे क्या जाएगा और कितना हमको मेंटेन करना। दैट इज आल्सो बिगेस्ट प्रॉब्लम आई बिलीव इन मैन्युफैक्चरिंग। बिल्कुल है, बिल्कुल है। आपको इसकी ना एक अंदर की बात बताता हूँ। अब जो प्रोडक्शन वाला है और जो प्लानिंग वाला है वो शाम को 6 बजे के बाद तो मिलते ही हैं, ठीक है। कंपनी में चाहे वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो लेकिन शाम को 6 बजे के बाद जरूर मिलेंगे, ठीक है। ऑन अ स्केल ऑफ 100 कंपनीज ले लो, 70% दोस्ती है। अब प्रोडक्शन वाले ने जो बनाना है वो प्लानिंग वाले ने बताना है, राइट। अब जब शाम को हम लोग बैठ गए, अब प्रोडक्शन वाले के पास क्या कलेश है डेली के, उसके पास क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके पास ये प्रॉब्लम्स हैं कि यार मशीन में ब्रेकडाउन ज्यादा है तो मैं इसको मीटअप नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। अब आइडियली क्या होना चाहिए, प्रोसेस, कमिंग बैक टू योर दैट क्वेश्चन कि आप प्रोसेस में क्या चेंज करते हो। प्रोसेस तो ये बोलते हैं कि देयर शुड बी एन एनालिसिस, बट वहां पे क्या होता है, प्लानिंग वाला चीजों को पुल कर लेता है और उससे क्या होता है, आपका डिले बढ़ता है। यस, जो आज बनने वाला था वो कल बनेगा, फिर जो कल बनने वाला था ऑब्वियसली वो तो परसों ही बनेगा। इससे क्या होता है, डब्ल्यूआईपी क्रिएट होती है, यस, क्योंकि जो पिछला प्लान था ना तो वो बन पाया और जो आगे वाला था ना वो बन पाया। सो वी हैव सीन मोर देन 50% ऑफ द डिले इन द प्लानिंग
जो प्लानिंग वाले बंदे ने करके दे दिया कि इसको बनाओ, 50% उसमें है, बट जो बाबूजी ओनर जी जो बैठे हुए हैं उनके पास चिट्ठा क्या जाता है कि वी आर ऑन दी एफिशिएंसी ऑफ 90%, अच्छा, जबकि होता उससे कम है। 50%, ओह माय गॉड। राइट। तो वो जो आई ओपनिंग है, वो जब हम लोग जाते हैं, वी हैव सेवरल टूल्स इन लीन, दैट इज ओईई, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, तो वो सारी चीजें ना उनके सामने रख देता है कि अच्छा यार सही कह रहे हो तुम, तो प्लांट तो मैंने 24 घंटे चलाने के लिए लगाया था, चला मैं 18 घंटे रहा हूँ, 7 घंटे तो मैं चला ही नहीं रहा, 7 घंटे में से 4 घंटे तो मेरी शिफ्ट ओवरलैप के निकल गए, 1-2 घंटे मेरे लंच के और टी ब्रेक के निकल गए, 18 घंटे बचे, 18 में से 5 घंटे में मेरी ब्रेक डाउन है। तो मैं 50% यूटिलाइजेशन पे हूँ प्लांट की, ये यूटिलाइजेशन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, अभी मैं एफिशिएंसी की बात नहीं कर रहा। अब 50% यूटिलाइजेशन पे मैं 50% एफिशिएंट हूँ। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि बनने चाहिए थे 1000 पीस उस 13 घंटे में, लेकिन मैं बना 500 ही रहा हूँ। आंसर ही रहा हूँ, यस, ट्रू। हियर कम्स द फैक्टर ऑफ स्पीड। पहले जो हमने डिस्कशन किया दैट वाज द फैक्टर ऑफ अवेलेबिलिटी, कि प्लांट ही अवेलेबल नहीं है बिकॉज ऑफ द ब्रेकडाउन्स। यहाँ पे आ गई स्पीड, बिकॉज आपको कोई देख ही नहीं रहा, अगर देख रहा है तो उस इंटेंसिटी से नहीं देख रहा। सो ये दीज आर द प्रैक्टिकल फैक्ट्स। But even after having a manager, नॉट ओनली बिग रैंकिंग, अच्छा, बिग still it happens. So it's very important for owner also to be eye opener. यस। They need to identify all this problems. एक और फैक्ट बताता हूँ, पता इनको होता है, Seriously. सीरियसली पता इनको होता है कि ये गड़बड़ चल रही है, बट वो इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। सेम थिंग विद अस, नो। आप घर की एग्जांपल ले लो, है ना, मेड 2 दिन ना आए तो बैंड बज जाती है। अब नई मेड जल्दी जल्दी तो मिलेगी नहीं आपको, राइट। सेम थिंग विद देम। अब जो प्लांट हेड पिछले 10 साल से संभाल रहा है, एकदम से नया प्लांट हेड नहीं लेके आ सकता बंदा, ये भी एक फैक्ट है। सो जब आप उनको कंसल्ट करने जाते हो तो आपको उनकी भी प्रॉब्लम्स अपनी उसमें रखनी पड़ेंगी कि यार ये भी एक फैक्चुअल बात कर रहे हैं, कि एकदम से अगर कोई नया बंदा तुम बोल दोगे कि सबको निकाल दो जी, ये कर दो जी, ठीक है, नई टीम बनाएंगे, है ना, तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसा हो जाएगा, नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट डू यू फील द सबसे बड़ा इनविजिबल लॉस मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है? इनविजिबल लॉस, इट इज नॉट एनालाइजिंग एनी लॉस। उसमें से हमने 1-2 एग्जांपल्स की बात की, रीवर्क की हमने बात करी, WIP की हमने बात करी। इनको एनालिसिस ना करना ही तो लॉस है। सबसे बड़ा। अच्छा, एक और आपको इसमें मैं इनविजिबल लॉस बताता हूँ, जो शायद मेरे ख्याल से बहुत कंपनीज कम कंपनीज उसको फॉलो करती होंगी। दैट इज द अनयूज्ड टैलेंट। आपने एक बंदा हायर किया, उसमें एक पर्टिकुलर टैलेंट है, लेकिन आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे। कर वो कुछ सकता है, लेकिन उसको लगा आपने किसी और प्रोसेस पे दिया, तो वेस्ट है वो, उसके लिए भी आपके लिए भी। दैट इज ऑल्सो हिडन लॉस। इसी वजह से कभी भी करेक्ट मैन पावर जो एक बन चुका ना, वो नहीं मिलती। करेक्ट। सो ये बहुत ज्यादा दिक्कत भी होती है, और कई बार मुझे ऐसा लगता है ये जो सेगमेंट है मैन्युफैक्चरिंग का, वहां पे एम्प्लॉयज खुद इम्प्रूवमेंट्स के लिए इतने दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस। You are right. They are not only resistive, they hate it. Yeah, I agree. They hate it. The concept of change management, they actually hate it. आप एक चीज देखो, जब हम लोग दिस इज आर कंसल्टिंग इज इक्विवेलेंट टू गोइंग टू जिम। सो परफेक्ट एग्जांपल, जिम में जाके आप क्या करते हो? यू कट ऑल द बॉडी वेस्टेजेस, राइट। फैट्स हैं, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड्स हैं, जितने भी आपके अनबर्न्ड चीजें हैं वो आप एक्सरसाइज के थ्रू, बट लीन इज सेम।
आप कंपनी में जाके जब लीन इम्प्लीमेंट करते हो तब कंपनी के वेस्टेजेस को कट कर रहे हो, है ना, उसको ही ऑप्टिमाइज कर रहे हो। तो इन ए सेम मैनर जब किसी को आप जिम में जाओ भेजोगे तो मतलब एक सेट मारेगा, उसके बाद नहीं यार मतलब बैंड बज गई, ठीक है, अगले दिन उसको दर्द होगा, वो होगा। लेकिन अगर उससे 4-5 दिन या एक हफ्ता 10 दिन आप निकल गए उस प्रोसेस से, देन उसके बिना आप रह नहीं पाओगे, नहीं रह पाओगे, yes. राइट। फिर वो आपका डेली रूटीन बन जाएगा। वो जो ट्रांजिट पीरियड है इस चीज का, वही इस रेजिस्टेंस और हेट का एक सोल्यूशन है। वो ट्रांजिट पीरियड में यू हैव टू जेल अप विद देम। यही होता है हमारे साथ, दे हेट इट, दे डोंट लाइक कि तुम कल के बंदे जिसके बाल भी सफेद नहीं हुए, सिर्फ दो तुमने उड़ा लिए हैं, हमें सिखाओगे? हम 35 साल से इंडस्ट्री चला रहे हैं, 40 साल से इंडस्ट्री चला रहे हैं, हमें सिखाओगे क्या तुम? उनका कहना सही है क्योंकि वो चला रहे हैं, बट उनको हमारी एक्सपर्टीज ही नहीं मालूम कि हमारी मदद करने आए हैं, है ना। तो ट्रेनर जो है, ट्रेनर ये थोड़ा ना पूछता कि भाई तुम कौन से प्रोफेशन से हो या किससे हो, या ट्रेनर से हम लोग पूछते हैं। ट्रेनर की हमें बात माननी पड़ती है कि भाई आज तुमने ये एक्सरसाइज करनी है, आज तुम्हारा ये है, आज तुमने लेग लगानी है, आज तुमने चेस्ट लगानी है, आज तुमने बाइसेप्स लगाने हैं, सारी चीजें उसको फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली आप बॉडी का वेस्ट कट कर पाते हो। सेम विद ऑर्गेनाइजेशन। ट्रू। वो जैसे मैन्युफैक्चरिंग में अगर मैं एम्प्लॉयज की भी बात करूँ तो काफी लेबर एम्प्लॉयज भी होते हैं, मेजोरिटी, हाँ मेजोरिटी, राइट। सो आई हैव आल्सो सीन किया उनके लिए कोई लाइक देयर आर नो एक्टिविटीज दैट आर हैपनिंग कि जहाँ पे उनको ब्रेक फ्री मिले, या फिर उनको भी एक मोटिवेशन चाहिए। इन्वॉल्वमेंट यू आर टॉकिंग, यस, सो वो चीजें भी काफी कम होती है, right? There are no training programs that has been implemented. There are no kind of breakthrough sessions which have been implemented. There are no mindset session that have been implemented, and then end of the day तुम बोलते हो कि मुझे ये quantity आज के दिन में ही चाहिए. So don't you think that top level people are also treating them in such a way that they are only laborers? you're right, but there is catch. ये जो सोच है कि भाई ऑर्डर आ गया, कल शाम तक डिलीवर करना है, बना दो, दैट वाज ड्रिवन बाय द फर्स्ट जनरेशन, राइट। जैसे जैसे सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन आई, वो उसको भी ऑप्टिमाइज करना चाहता है। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दे ऑल्सो वांट कि हफड़ा दफड़ी ना हो, एक प्रॉपर कल्चर हो, है ना, एम्प्लॉय डेवलपमेंट हो, एम्प्लॉय एंगेजमेंट हो। वो किस तरीके से होगी उसको खुद नहीं पता। क्यों नहीं पता? दे आर बिजी इन डेली फायर फाइटिंग। जैसे आपने अभी बोला कि कल तक चाहिए या परसों तक चाहिए या आज ही चाहिए, है ना, वो क्या है? फायर फाइटिंग तो है। वो ये कि चाबुक मार के चलाने वाली बात। टू eliminate or to reduce it, all the time you cannot eliminate everything. You have to take two targets, either eliminate or either reduce. तो इस चीज को reduce करने के लिए you have rightly said employee development is the biggest tool, and I personally feel it, चाहे वो मेरी खुद की कंपनी के एम्प्लॉयज क्यों ना। So we always recommend our clients कि हमें ये इवेंट्स करने चाहिए, हमें रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशंस करने चाहिए, हमें इंसेंटिव स्कीम्स निकालनी चाहिए। तो ये हम लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छा होता है, गेटिंग गुड रिजल्ट्स आल्सो। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है वो लोग की एनर्जी भी 2x boost हो जाती है, बिल्कुल बिल्कुल, right? Because at a time 300, 400, 500, 600 laborers are working. यू आर 100% राइट, एंड दैट टू थ्रू प्रोसेसेस, नॉट ओनली कि आपने एक इंसेंटिव बना दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया। अब प्रोसेस में फिर यहाँ पे आ जाता है केपीआईज। तो आपने 2-3 टॉपिक्स को चैनलाइज कर दिया, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, एम्प्लॉय डेवलपमेंट थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोसेसेस ऑफ द कंपनी। अब आपने केपीआई बना दिया कि भाई अगर तुम ये इतना माल इतने घंटे में बनाते हो, यू विल गेट दिस मच इंसेंटिव। अब आपके 2 टारगेट पूरे हो गए। जो पहले डंडा था, जो चाबुक था कि कल तक चाहिए, एक तो वो भी होगा, लेकिन अब वो होगा प्यार मोहब्बत से कि जी मैं कल तक हो जाएगा बाबूजी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
there is a incentive, there is a sense of, we can say the treat. आपको एक प्राइज मिल रहा है उसके बाद, है ना, तो आपको एक वो अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. कल को वो खुद आएगा आपके पास, ऑपरेटर खुद आएगा कि सर आई वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, राइट. सो वी हैव राइटली सेड निराली जी कि ये चीज तो फैक्ट है. फैक्ट है. सो मतलब ये चीजें जब आप इम्प्लीमेंट करते हो, मुझे लगता है बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ भी काम करते बिल्कुल करते हैं. एंड देन दे वुड वांट टू, एज यू कंपटीशन इज ऑलवेज गुड. या इट इज ऑलवेज गुड. और ड्राइव तो किसको नहीं चाहिए, राइट. Coming back to this segment, manufacturing. I have seen that very less branding is in here. जब ब्रांडिंग की बात, जैसे फर्स्ट जनरेशन में ब्रांडिंग में इतना बिलीव नहीं करता था, क्वांटिटी में बनाता था, रिलेश रहता था, बट बनाता था, रिलेश रहता था, राइट. हाउ इज इट नाउ? इज इट विल इवॉल्व या फिर अभी इसी से तरीके से? यस, यू आर राइट. बन रहा है. इट इज गेटिंग इवॉल्व्ड. इट इज इनएविटेबल, लेट मी टेल यू. इट कैन ओनली बी डिलेड. ओके. ब्रांडिंग कर रहे हैं, जैसे जैसे थर्ड जनरेशन आगे आ रही है वो कर रही है. पहले वालों ने क्वांटिटी बेच दी, दूसरे वालों ने क्वालिटी बेच दी. अब जो तीसरी आ गई है वो ब्रांडिंग भी कर रहा है. बिकॉज हमारे सामने जो चीज आ रही है, कोई भी प्रोडक्ट आ रहा है, आज आप कोई भी फोन खरीदते हो, सो आपने अनबॉक्सिंग वीडियोस देखी होंगी. वो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, फोन चाहे जैसा भी हो, है ना. तो वो क्या है? वो पैकेजिंग है, वो ब्रांडिंग है ना. आज आप कोई फूड प्रोडक्ट की बात करते हो, वो ब्रांडिंग है. कि कौन सा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की बात करते हो, है ना, तो वो ब्रांडिंग के ऊपर आप लेते हो कि जितना जितना बड़ा सेलिब्रिटी अगर उसको कर रहा है तो मतलब ये अच्छा ही होगा, है ना. तो सेम लाइक दैट इन मैन्युफैक्चरिंग. एवरी मैन्युफैक्चरिंग डजंट हैव अ डायरेक्ट प्रोडक्ट. एक डायरेक्ट प्रोडक्ट के अंदर भी देयर आर सब मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स जो कि उसको कंट्रीब्यूट करते हैं. छोटी सी एग्जांपल, आप किसी भी फूड आउटलेट पे, लेट्स से डोमिनोज इज देयर, पिज्जा हट इज देयर, राइट, मैकडोनल्ड्स इज देयर. आपने कभी अपनी लाइफ में कभी देखा हो कि जिस पैक्ड बॉक्स में वो देते हैं वो कहाँ से बना है, कैसे बना है, उसका जो रैपर है वो कहाँ से बना है, जो उसकी फॉइल है वो कहाँ से बनी है, या उसके अंदर जो उन्होंने फ्राइज यूज करी है, वो फ्राइज का जो पाउडर है वो कैसे बना है, राइट. तो वो ब्रांडिंग हमने वहां पे तो देख ली, बट नाउ दीज पीपल हैव स्टार्टेड डूइंग देयर ब्रांडिंग एज वेल. दैट इज रिक्वायर्ड. दैट इज रिक्वायर्ड ऑब्वियसली, बिकॉज जो फाइनल प्रोडक्ट का एक सप्लायर है या मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडर है, उसके पास ऑप्शंस बहुत क्रिएट हो गए हैं. अब वो चूज करेगा जो उसको दिख रहा है, क्योंकि इस देश की कहावत है भाई, जो दिखता है वो बिकता है, राइट. तो इन्होंने इवॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है. आई हैव सीन सो मेनी क्लाइंट्स जो मतलब हमारे साथ काम कर चुके हैं, कर भी रहे हैं, जो कि अपनी ब्रांडिंग पे काम कर रहे हैं. मतलब टेप से लेके कि यार मुझे अपने प्रोडक्ट पे टेप लगानी है, हालांकि वो पता है कि जाते ही फट जाएगी, स्टिकर से लेके, है ना, उस पे लोगो से लेके, दे वर्किंग ऑन दैट. Correct. इट इज Bigger companies are doing really well. Like if you talk about Havells, if you talk about GM Modular जैसे उन्होंने अपना ब्रांड लॉन्च किया था, दो दे आर अ legacy company. After splitting, I guess they came up with GM Modular. Okay, उन्होंने लॉन्च ही इतना बढ़िया किया था उनका. So every damn person knows when you go in a shop, उनको पता है कि मुझे GM Modular की लाइट माइंड में पहुंचा दिया उन्होंने. एग्जैक्टली. सो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, वो मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच एक एक टिफ हो जाती है, और डिस्ट्रीब्यूटर एक फियर में आ जाता है कि आप इतना ब्रांडिंग कर दिए हो तो हम किस तरीके से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन करें. बट देन डिस्ट्रीब्यूटर्स दे डोंट थिंक इन अ वे दैट बिकॉज ऑफ ब्रांडिंग परचेसिंग बिकम्स 3x 4x. Absolutely. So it's very important to have correct branding. Even a company like manufacturing company should have a good branding. और ये जो छोटे स्केल पे जो मैन्युफैक्चरर्स है ना, उनका तो अभी भी ब्रांडिंग में इतना, जैसे पैकेजिंग वगैरह देखोगे, इट हैज इट इज इम्प्रूव्ड इन अ वे, बट द काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इफ आई टॉक अबाउट ब्रांडिंग, it is still
It still has to Still improve. has to improve, I believe. Absolutely right. It's still because Huge scope. Huge scope. giving you one example, one of my client, he has a good, he's into textile. Okay. So he gives his product in some penny, say somewhere around 250-300 का जो product है, वो उसने बड़ी कंपनी को दिया है. They have this online platform. It is B2C. Okay. So their 250 का product they are selling in 4,000. Can you imagine the kind of margin it has? So in a way, like, if a manufacturing company himself does kind of branding online as well, it becomes very easy for him also to increase his pricing, right? So it's very important to have a good branding at place. So we had a very good conversation. Out of curiosity, I really want to know, like, how did you went from 1 employee to 80 employee? See, that was there was no strategy behind it. There was no, particular planning behind it. It was all कि आगे बढ़ते जाओ. मतलब क्लाइंट्स आए, रेफरेंसेस से भी आए, तो ऑब्वियसली आपका एम्प्लॉय ऐड होता गया. बट लेट मी टेल यू, द बिगेस्ट चैलेंज इन दिस कंसल्टिंग was to deploy those recruited people. अब हमने डिस्कस कर लिया कि जो मेरे पास है वो यहाँ पे काम नहीं कर रहा, अब उसको डिप्लॉय करना वाज द बिगेस्ट चैलेंज. हमारे एम्प्लॉयज में क्या है, हमारे एम्प्लॉयज दे कम फ्रॉम ए बैकग्राउंड ऑफ लीन. हमारा क्राइटेरिया है एक कि विल टेक फ्रॉम 3 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, दिस मच नॉलेज एंड ऑल. ये हमारा एक क्राइटेरिया है कि 30 साल के नीचे होना चाहिए, ठीक है, जिसने अच्छे खासे धक्के खाए हो, जिसको दुनिया का पता हो. तो लेकिन उसको डिप्लॉय करना कि उसको हम ऑटोमोबाइल में डाले हैं या उसको इलेक्ट्रॉनिक्स में डाले हैं, ठीक है, लीन तो लीन है, चाहे आप होटल इंडस्ट्री में करो, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में करो, है ना, आपको तो वेस्टेजेस को कट करना है. वो जो डिप्लॉयमेंट था, क्योंकि डिप्लॉयमेंट के बाद ही प्रोजेक्ट रिटेन होगा, डिप्लॉयमेंट के बाद ही वो एम्प्लॉय रिटेन होगा. प्रोजेक्ट नहीं तो वो एम्प्लॉय नहीं, राइट. सो विद गॉड्स ग्रेस आज तक हमें किसी भी एम्प्लॉय को खुद से जयराम जी की नहीं बोलनी पड़ी आज तक कि जी हमारे पास प्रोजेक्ट नहीं है, आप यू आर नो मोर रिक्वायर्ड. नेवर आज तक, और टचवुड हम लोग कभी करेंगे भी नहीं ऐसे. So I guess that was the only मंत्रा कह लो या गॉड्स हैंड बोल लो, भाई भगवान का हाथ था हमारे पे कि बढ़ते गए एंड वी आर टारगेटिंग 200 इन नेक्स्ट 1 year. Wow, super. सब फॉरेन का बिजनेस एक्वायर करें. वी आर रिग्रेसली ट्राइंग टू डू दैट. वी आर ऑलरेडी वर्किंग इन 3 countries Wow. other than India. Wow. Yes, we are working in Egypt, we are working in Turkey, we are working in UAE. So we are trying to acquire more business in abroad. So now people also think that, they need consultant. They have that acceptance. Preferences हैं. न्यू मार्केट अभी भी आपके लिए वैसी है जैसे मेरे लिए पहले दिन पे थी. आई कैन स्टिल गो एंड नॉक पीपल कि भाई ऐसे करके हम हैं, बिकॉज अभी भी वो तो है ही है ना एग्जिस्टेंस में, कि जिनको पता ही नहीं कि लीन कंसल्टेंट्स होते क्या है, क्या करते हैं, हमारी क्या हेल्प कर देंगे, मैं इनको क्यों हायर करूं. हम कंसल्टेंट्स तो लोगों को बोझ लगते हैं, ओवरहेड्स लगते हैं कि यार ये अगर इनको तो पैसा देना पड़ेगा. और जैसे ही लेकिन अगर उनको एक बार टेस्ट आ जाता है आउटपुट का, फिर वो उस चीज को छोड़ते भी नहीं है. True. किसी भी तरह की कंसल्टेंट. दैट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू. So Kamal ji, do you really think that Indian factories जो है वो 60 to 70% inefficiency पे चलती है? Even less than that. Seriously? Even less than that. That's a very important question, let me tell you. Or not only less than that, even more than that as well. But जो more than 60-70% है, उसकी percentages कम है. मैंने अभी हमने डिस्कशन करा कि अ प्लांट इज इंस्टॉल्ड फॉर 24 hours. एक जो मशीन प्लांट में लाई जाती है वो 24 घंटे चलने के लिए लाई जाती है. दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ लीन. अब आपके पास बिजनेस ही
आउटपुट ही 18 घंटे की है, तो 6 घंटे का तो पहले ही आपका चला गया। 18 घंटे में से यू आर हैविंग 6 आवर्स ऑफ ब्रेक डाउन, मतलब डाउन टाइम बोल लो। अब डाउन टाइम दो तरह के होते हैं, वन इज related to the breakdowns happening because of the mechanical breakdowns, electrical breakdowns, instrumentational breakdowns, because of something else, blah blah blah, right? So there are so many reasons जिसकी वजह से डाउन टाइम आता है। प्लांट शट आ गया मशीन में कोई, या इस मशीन में प्रॉब्लम नहीं आई लेकिन इसके पीछे वाली जो फीडर है उसमें प्रॉब्लम आ गई, इसका कोई कसूर नहीं है, ठीक है, लेकिन पीछे वाले मशीन का कसूर है, तो इसका प्लांट शट आ गया, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे इफेक्टिव आवर्स बचे 12, तो 50% यूटिलाइजेशन तो उड़ गई ना। करेक्ट। जो मैंने अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया था, जिस सोच से मैं लेके आया था, वो 50% तो वहीं पे मेरी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चली गई। अब आते हैं एफिशिएंसी पे, दिस वाज द अवेलेबिलिटी। अब जो 12 घंटे में प्रोड्यूस होना चाहिए था, तो इसका मतलब तो अगर मैं इसको थोड़ा सा रिवर्स कैलकुलेट करके देखूं तो मैं 24 घंटे चला के 15 दिन में काम खत्म कर लूं और 15 दिन के लिए प्लांट टोटली बंद कर दूं। अगर मेरे को 12 घंटे 30 दिन चलाना है तो मैं 24 घंटे 15 दिन चला लूं, या 20 घंटे 20 दिन चला लूं, मतलब मेरे 10 दिन के पैसे बचेंगे। किस चीज के पैसे बचेंगे? इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट 100% फॉर दोज डेज रिकवर्ड, ठीक है। चलो मैन पावर को सैलरी देनी पड़ेगी 30 दिन की, दे दो, मान लिया है ना, एक फैक्टर लेके चलते हैं। अदर एक्सपेंसेस जो कि एक बिजनेस को रन करने के लिए चलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन कॉस्ट के एक्सपेंसेस, वो बच गए आपके मेजरली। इसमें आपके फ्यूल कॉस्ट एंड ऑल सारा कुछ बच गया। सो 12 घंटे पे अगर आप हो तो उसमें भी आपकी जो स्पीड लॉसेस है 12 घंटे में जो बनना चाहिए था वो बना इक्विवेलेंट टू 7 आवर्स का या 8 आवर्स का। तो जब आप ओवरऑल निकालने जाओगे तो 7/24 होगा ना, 7/12 नहीं होगा, बिकॉज आपने प्लांट इंस्टॉल वैसे किया। तो हम लोग इस नजरिए से देखते हैं, ओनर्स नहीं देखते। ओनर्स देखते हैं कि यार मेरे पास काम ही 12 घंटे का था, उसमें से मैंने 9 घंटे जितना काम कर लिया, लेकिन करा तो 12 घंटे में, तो मेरी तो एफिशिएंसी 100% है। लेकिन जब अगर आप देखोगे तो एफिशिएंसी 25, 30, 35, 40% रह जाती है ओवरऑल सिनेरियो में, क्योंकि कल जब आपके पास ऑर्डर्स आएंगे तो आप इसको बढ़ाओगे, और जब बढ़ेगा तो परसेंटेज उतना नहीं बढ़ेगा, बिकॉज आपके लॉसेस बहुत ज्यादा है ना। आप कम से कम नहीं तो 30-40% तो डाउन टाइम में लॉस कर रहे हो, और उसके बाद 20-30% आप स्पीड में लॉस कर रहे हो। So that's why I feel that, consultants are so important part of any business, not only manufacturing, but I believe सारे business के लिए consultant बहुत important है. But still in India, people hesitate to hire a consultant. Absolutely, you're right. What message would you like to give to the owners or the factory owners or the business owners that why it is important to have a consultant in a particular business? Lean consultant. First of all, right. So there is no particular as such, message, but what I would say, what I would recommend, कि sir, listen to us once. True. आप एक बार समझो, आप डायरेक्ट कैलकुलेशंस पे मत जाओ कि व्हाट आई हैव टू पे, है ना। जब आप कोई फोन लेने जाते हो तो उसकी कैलकुलेशन आप नहीं करते। एप्पल का फोन लॉन्च होता है तो पता होता है कि 1.5 लाख से ऊपर जाएगा, ठीक है, बट मन बनाया होता है कि यार ये तो लेना है, चाहे उसकी जरूरत हो चाहे ना हो। लेकिन यहाँ पे तो हमारी जरूरत है, और अगर आपको फील नहीं होता तो हम आपको प्रूव कर देंगे। True. ठीक है, विद ओनली मंत्रा दैट इज टेंजिबल गेन्स। टेंजिबल गेन्स जो है वो हमारी ड्यूटी है आपको देना। सो एटलीस्ट लिसन टू अस, sit across the tables, we'll tell you, we'll give you, else you don't pay us anything. True. And if whatever you'll pay us, we'll give you 3x of that. There is a minimum guarantee. I guess this only consultant can say, because we believe in them, right? We believe in what we say and we want to give them the result. Only consultant, I believe, can generate a very good result if they are given a chance. So it's very important to have a consultant. It's not kind of an additional cost to your company. It is basically, it adds to the profits of your company, right? Wherein you guys are working more towards controlling the loss and increasing the profit.
Right, so we had a very good conversation, sir, and we are heading towards the most important part of our show. That is rapid fire round. Okay, so whatever questions I'll ask, you have to answer only in one word. So are we Can I ready get a for- pass also? Sorry, we don't have that option. Make them up in my So whatever question I'll ask, you'll answer in one word. So are you ready for it? Yes. All right then. The biggest waste in any business. Mindset. I agree. People or processes, which is harder to fix? People. One industry India must improve. बहुत है but textile. I believe textile is most least paid as well. There's somewhere. Somewhere. Lean in one word. Boon. The biggest mistake founders make. They don't hire us. Ah, I agree. Investment or process, what comes first? In a owner's mind, investment. That is the biggest challenge. They consider everything is कि investment करेंगे तो होगा. Hoga. Whereas they should consider process. कि प्रोसेस को ठीक करेंगे तो इसी में से पैसा निकल आएगा. Exactly. वो नहीं है. One myth about manufacturing you hate. Again that investment. Yes. कि इन्वेस्टमेंट करेंगे, नई मशीन आएगी. Recently I had a discussion with my existing client. तो उनके प्लांट हेड साहब बैठे हुए थे हमारे साथ, मेरे लेफ्ट साइड पे सामने ओनर साहब बैठे हुए थे. तो ही सेड कि सर हम लोग एक काम करते हैं, ये जो रिजेक्शन वाला प्रोजेक्ट है इसको होल्ड कर देते हैं 6 महीने. तो मैंने बोला क्यों सर? वो नई मशीन आएगी तो रिजेक्शन अपने आप कंट्रोल हो जाएगा. सो सेम इन्वेस्टमेंट, मतलब नई मशीन पे इन्वेस्ट, ऑब्वियसली नई मशीन आएगी तो चीज, लेकिन जब पहले आई थी वो भी तो नई आई थी ना, तब आपने कौन सा पुरानी मशीन लगाई थी, उसमें क्यों हो रहा है, उसका एनालिसिस नहीं करा. लेकिन नई मशीन ले आएंगे, फिर हम लोग 10 साल बाद फिर नई मशीन ले आएंगे, तब तक ये वाले प्लांट हेड जा चुके होंगे, नए वाले आ चुके होंगे. Zero investment growth tip in one line. Implement lean. One thing you never compromise on. The tangible gains. Super. Thank you so much. We had wonderful chat today, and it was, it was very close to my heart, the conversation that we had, because I guess we share the same profession with different niche. So thank you so much for being there, and to all the viewers and to all the audience, even founders, the manufacturers, whoever is watching this, I really want to tell you one thing, that if you want to increase your profit, you should approach Lean Tycoon Consultant, because they are the ones who can identify what even you can't do it. So before we end our show, I really want you to share something about EkSoch. So it is, really wonderful that I'm here. So thank you for the invitation. And सेकेंड थिंग, मेरे लिए सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये होगी कि वी आर इनटू द सेम प्रोफेशन, राइट. ऐसा होता नहीं है, बिकॉज आई वाज वेरी मच नर्वस अबाउट इट कि यार मैं पॉडकास्ट हम लोग कर रहे हैं तो मैं कैसे समझाऊंगा अपनी सर्विसेज, है ना. मेरे को तो लग रहा है कि मैं जैसे एक नए क्लाइंट को समझाता हूँ, मुझे वैसे समझाना पड़ेगा. बट यू आर दैट मच इनटू द थिंग्स. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कुडोज टू योर टीम. सो जिस तरीके से उन्होंने कोऑर्डिनेट किया है ना, आई लाइक द वे कि एक गूगल फॉर्म आप लोग यूज कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लीन. ठीक है, गूगल फॉर्म में सारी चीजें हैं. हालांकि वहां पे एक चीज मैंने करेक्ट करवाई उनसे, दैट वाज देयर, दैट वाज ऑल्सो वेरी वेरी गुड. ये फोटोज वाला, राइट, दैट वाज अ वेरी गुड थिंग. तो कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, एंड यू गाइज आर तंग नहीं करते हो. ठीक है, बाकी जो है कि वो पीछे पड़ जाते हैं कि यार कॉलिंग सर कब करेंगे. सो यू हैव अ प्रोसेस ऑफ कॉलिंग. 1 call per day और 2 to 3 messages per day. This is very good mantra कि आप सामने वाले से बिजनेस तो चाह रहे हो, लेकिन उसको इरिटेट नहीं कर रहे हो, राइट. सो योर टीम इज हैविंग अ वेरी गुड, आई वुड से, the skill to communicate, the skill to coordinate. So that is one message. Please keep doing it. Thank All the best to you guys. Thank you so much, and means a lot.
And as I said, this conversation was, I still wanted to ask a lot of questions, though, because we are in same industry and really wanted to understand, like, from expertise that you have. But still, I guess we will have another chat one more time. So thank you so much once again. Kamalji has made one truth crystal clear. Businesses don't always need investment. They need awareness. They need process. They need lean thinking. Cut waste, improve efficiency, and profit automatically multiplies. This was Ek Soch, a thought that can save lakhs, even crores. The road to profit isn't paved with money. It's paved with process. So if you like this episode, don't forget to like, share, and subscribe.